हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे 9th क्लास के बच्चों के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, हम अभी नेचुरल रिसोर्सेज को स्टडी कर रहे हैं। रिसोर्सेज मीन्स द यूजेबल थिंग्स एंड नेचुरल मीन्स प्रोवाइडेड बाय द नेचर। दोज थिंग्स विच आर प्रोवाइडेड बाय द नेचर एंड वी कैन मेक यूज़ ऑफ देम विदाउट एनी कॉस्ट। मीन्स ऐसी चीज़ें जो अल्लाह ताला भगवान की तरफ से, जो हमारे गॉड ने प्रोवाइड किया हमें बाय नेचर, इज प्रोवाइडेड दो थिंग्स एंड वी कैन मेक यूज़ ऑफ दोज थिंग्स। जैसे हमने अभी टॉपिक उठाया है, हमारा ईयर का है कि हवा जो है, वी कैन मेक द यूज़ ऑफ दिस ईयर विदाउट एनी कॉस्ट। हमें कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, कहीं ऐसा नहीं है तो जिससे हम कह सकें कि हम कहीं को ख़रीद के लाते, इसीलिए हम इनको नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय नेचर, प्रोवाइडेड बाय नेचर। तो इसमें हमने बात कर दी कि हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारा लिथोस्फीयर है, हमारा हाइड्रोस्फीयर है। देयर आर थ्री स्फीयर्स which all comprises the biosphere, and all these spheres are necessary for performing the life activities. It is why we can say that this earth has a unique it is a unique planet in the solar system. Out of all other planets, this has unique position because the life is present. The basic necessities, the basic conditions which are necessary for the life, they are available only on the earth. Otherwise, the other planets are bigger than that of this earth, and there are not such conditions as on the this earth. Means these are the spheres. There is a hydrosphere, atmosphere, and lithosphere. Means all these three spheres jointly, when an individual can make use of all these three spheres for their life activities. जैसे हमें जिंदा रहना है तो we are terrestrial, we are living on the earth, we are terrestrial organisms, but we can depend upon the hydrosphere because we are living, we have life. It is only due to the presence of water in our body. If the water in our body is concerned, we have more than 70% weight which is made of, which contain the water. It means water is essential for the life, and without this water we cannot perform our day-to-day activities. This water which is used for bathing, for domestic purposes, for eating purposes, or drinking purposes, for cooling purposes, means this water has so many uses. But as far as the life is concerned, life is as a result of blood, and blood is as a result of water, because blood, which is a fluid, and most of the part of this blood is a fluid, that is a water. It is a water due to which our blood can circulate inside the body. So we can say that without water we cannot live. And then there is air, which is a part of atmosphere, which is available in the atmosphere, and we can live without food and other things for so many days. But as far as the air is concerned, we cannot live for a while. We cannot live for more than 2 or 3 minutes if oxygen is not available to we. So from where we get oxygen, it is available in the atmosphere, and we can inhale the oxygen from the atmosphere. So atmosphere is a part of our life. Means we cannot live without atmosphere, because we can take air from the atmosphere. So atmosphere very essential part. The terrestrial, the earth surface on which we live, on which we perform different activities, on which we can make our these residential buildings, जहाँ पे हम food, shelter and climatic conditions are all necessary for life. So all these we cannot obtain from one sphere, that is from the earth surface, but almost all we can get each and everything from
every sphere means hydrosphere, lithosphere and atmosphere, so they consist biospheres. Now we have discussed that what is atmosphere. Atmosphere extend up to a few kilometers because there are different layers in the atmosphere. जहाँ तक एटमॉस्फेयर की बात है, ये कहाँ तक लाइफ सपोर्ट करता है? क्या हम बहुत ऊपर चले जाए? If we can go thousands of kilometers above the surface of Earth, can we breathe there freely? No. The answer is no. Suppose we are asking, can you live, can you perform all those activities which you are performing on the earth? If we can go above the surface of earth up to the 500 kilometers or 1,000 kilometers, can we perform those activities? Even we cannot obtain air, oxygen is not available there. So there are different layers. There up to how many kilometer air is available, then what comes, हमने इसको कर दिया है कि ऑक्सीजन हमें नाइट्रोजन वगैरह ये एटमॉस्फेयर से मिलती है, तो एटमॉस्फेयर को हमने किया है। जहाँ तक लाइट का सवाल है, जहाँ तक सूरज की रोशनी का ताल्लुक है, तो वी गेट, हमने पहले इसको डिस्कस किया हुआ है कि द सन विच इज़ अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, विच इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन दिस यूनिवर्स. But the light, it is a solar energy due to which there is a water cycle. Otherwise अगर ये सूरज की रोशनी नहीं होती तो हम जो है वो हमारा पानी जो है, ये हर चीज़ की डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स होती हैं, ये चेंज नहीं होती. ये या तो सॉलिड में रहता है, या तो गैसेस में रहता है, या तो क्या होता. हमें इस वक्त वो बात नहीं करनी है. जहाँ तक सवाल है कि सूरज की रोशनी जो है कितनी है, जो सूरज से रेडिएट होती है रोशनी, तो क्या सारी रोशनी हमारी ज़मीन तक पहुंचती है, कि कुछ रोशनी रास्ते में खर्च हो जाती है, कि कुछ रोशनी कुछ वापस भी हो जाती है. सो इसलिए हम पढ़ते हैं कि आपने पहले आई वी हैव रेड इन द अर्लियर क्लासेस दैट ओजोन लेयर इज देयर इन द स्ट्रेटोस्फीयर. इसलिए आज का ये जो डिस्कशंस है इसलिए करनी है ताकि हमने इसे पढ़ा है कि ऑक्सीजन हमें एटमॉस्फेयर से मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को एटमॉस्फेयर से मिलती है, वहाँ पे डस्ट पार्टिकल हैं, वहाँ पे वाटर वेपर्स हैं, दूसरी गैसेस हैं. लेकिन जहाँ तक स्ट्रेटोस्फीयर का सवाल है, अब वो हमारा जो है ट्रोपोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर है, मीजोस्फीयर है, थर्मोस्फीयर है एंड आइनोस्फीयर है. हम पहले इसे थोड़ा सा इसका रफ फिगर हम बना लेंगे. हमारा हम 5, 10, 200, 250 किलोमीटर्स की बात हम करते हैं. 50 किलोमीटर, 100, 150, 50 के फ़र्क से बनाएंगे हम. 300 किलोमीटर, 350 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 450 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, then 550 किलोमीटर अबो ऑन. यहाँ तक जो है सात 7.16 ट्रोपोस्फीयर. स्ट्रेटोस्फीयर. Then mesosphere.
then thermosphere. Exosphere. तो जहाँ तक इसकी लेयर्स की बात है, हमने बात की है कि एटमॉस्फेयर जो है वो पूरा, इसको एटमॉस्फेयर बोला जाता है। जहाँ तक हवा होगी वहाँ तक हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। लेकिन जहाँ तक हम ये जो हमारा हवा है, ये लाइव प्रोसेस के लिए 65 किलोमीटर तक आपको मिल सकता है। इट एक्सटेंड, कहीं पे 35 किलोमीटर है और कहीं पे 65 किलोमीटर। इट डिपेंड्स अपॉन द टॉपोग्राफी ऑफ द अर्थ। नाउ हम बात करेंगे कि जो हम बात करते थे एटमॉस्फेयर की, तो सबसे पहले हमारा ट्रोपोस्फियर आता है। ये 7.16 किलोमीटर होता है, तो ट्रोपोस्फियर है। तो ट्रोपोस्फियर जो है ये हमारा सबसे नीचे वाला है, अर्थ की जो है सरफेस से लेकर आप टू दी 7.16 किलोमीटर तक आपको ट्रोपोस्फियर मिलता है। और इस ट्रोपोस्फियर में हमारे मिक्सचर ऑफ गैसेस जो है वो हमारे मिलते हैं। देन कम्स स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर एक्सटेंड अप टू 65 किलोमीटर। और एट दी अपर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर मीन्स हम बात करते हो, इसी को डिस्कस हम करना चाहते हैं कि जो बात हमने की थी कि सूरज की रोशनी क्या ज़मीन तक सारी पहुंचती है या व्हाट कंटेन द सनलाइट। अब अगर हमारा एक सन जो है विच इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, लाइट जो रेडिएट होती है, क्या पूरी की पूरी लाइट हमारी ज़मीन तक पहुंच पाती है या नहीं? तो क्वेश्चन है, क्या जो भी द लाइट रेडिएटेड फ्रॉम सन, कैन ऑल द लाइट रीच द अर्थ सरफेस? द क्वेश्चन इज नो। हमारा आंसर जो होगा क्वेश्चन का, आंसर जो हमारा है कि वो ऑल द लाइट रेडिएटेड फ्रॉम द सन कैन नॉट रीच द अर्थ सरफेस बिकॉज द सनलाइट है 3 वेवलेंथ्स। इसके अंदर 3 तरह की वेवलेंथ्स होती हैं। एक अल्ट्रा वायलेट रेज है, देन इनविजिबल लाइट है, देन इंफ्रारेड रेज है, इंफ्रारेड रेज। तो जहाँ तक बात हम करेंगे कि स्ट्रेटोस्फीयर की, तो स्ट्रेटोस्फीयर जो है दूसरी लेयर है एटमॉस्फेयर में। एक दूसरी लेयर है जिसमें एट द अपर पार्ट ऑफ द स्फीयर देयर इज ए ओजोन लेयर। इसको हम ओजोन लेयर बताते हैं, ओजोन लेयर। इट इज ओजोन लेयर ड्यू टू विच द लाइफ इज पॉसिबल ऑन द अर्थ। अदरवाइज सन की जो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं, इफ दोज अल्ट्रावायलेट radiations coming from sun, if all those ultraviolet radiation can reach the earth surface, they will destroy all the life. Suppose ये अल्ट्रावायलेट रेज ऐसी रेज है सूरज की, अगर ये ज़मीन पे पहुंच जाएंगी तो सारे ज़मीन को राख करके रख देंगे। मीन्स दे विल बर्न ईच एंड एवरी थिंग्स ऑन विच दे फॉल। वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस
अगर ज़मीन पर आ जाएं, ये जहाँ तक ये पड़े तो वो सारी लाइट को जला के डाल देंगे, सारी लाइट जो है ये सारी चीज़ों को जला के रखेगी। तो इट इज़ ए ओजोन लेयर विच इज़ एट द अपर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर. The function of this ozone layer is that this ozone layer protects us from the ultraviolet radiation, because the function of this ozone layer is that they cannot allow to pass through the ultraviolet radiations. जब भी सूरज से रोशनी आएगी और ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को वापस करती है, अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसका काम है ओजोन लेयर का कि अल्ट्रावायलेट रेज को रिफ्लेक्ट करना। लेकिन दिस कैन एक्ट एज ए अम्ब्रेला, एज ए ब्लैंकेट। ये हमें छतरी का काम देती है, जो छतरी हमको बारिश से बचाती है। इन द सेम वे द ओजोन लेयर विच इज प्रेजेंट ऑन द upper part of the stratosphere, it cannot allow the ultraviolet radiations to pass through. Whenever these ultraviolet radiations coming from the sun, when they strike with this ozone layer, the ozone layer which is present on the upper part of the stratosphere, once they strike with this ozone layer, and they have a capability, they have a capacity that they cannot allow them to go pass through, but they have ability to give back, they reflect back the ultraviolet radiation to the atmosphere. ये वापस कर लेती है, सो हम जो है वो नीचे बच जाते हैं। हम बोल देंगे कि 1/3 ऑफ द टोटल सन लाइट रेडिएटेड फ्रॉम द सन means 1/3 of the sunlight contains the ultraviolet radiations which have capacity, which have capability that they can burn the living things, they can burn the living organism, living things। जो भी चीज़ जो है, दरख्त है, पहाड़ है, सारे इंसान जो भी लाइफ जिनकी है, अगर it happens that the ultraviolet radiation coming from the sun reach the earth surface, they will burn all those things, all those organisms which are living on the earth. So it is a ozone layer which protects us from the ultraviolet radiation. Then comes invisible light. ऐसी लाइट है जिसको हम देखते नहीं हैं। फिर then there is a infrared rays, visible light हम बोलेंगे visible light वो लाइट है जो हम देखते हैं। मीन्स अभी दिन है तो we need not to switch on the electric bulbs inside the room. Suppose we are inside the room and if we switch off all the electric bulbs, despite the electric bulbs are switch off, despite of that we can perform activity inside the room. We can write, we can read, we can walk. It means the sun rays are not falling directly this time inside the room, but the reflection of light takes place and the things which are inside the room are visible. It means this is a light which is a visible light जो हम देखते हैं ये सफ़ेद हो जाता है बिल्कुल। तो ये लाइट है, ये 1/3 होती है। एंड देन देयर इज अनदर लाइट विच इज इंफ्रारेड रेज। अब हम इसी लाइट को देखते हैं तो लाइट जो है अब दो तरह की सिचुएशन से, इस वक्त हम कमरे के अंदर चीज़ें रखी हुई हैं और कमरे के बाहर रखी हुई हैं। मीन्स अगर हम वी लाइक टू touch the chair, touch the iron tool which is outside the room, we are not able to touch because due to the infrared rays that is heat up. Due to the falling of infrared rays, the stool, the iron things which are outside the room, which are exposed to the sunlight, they become hot because infrared rays. So we can say, and the things which are inside the room may be made of iron, but we can touch them easily because they are not as hot as the things which are outside, which are exposed to the sunlight. It means we can see that
देयर इज समथिंग इन द सनलाइट, वहाँ पे उसमें कुछ चीज़ ऐसी है जिसमें कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है कि वो किसी न किसी तरीके से उस चीज़ को हीट अप करती है। मीन्स दिस इज इंफ्रारेड रेज, these are the infrared rays which are radiated from the sun, and those infrared rays have a capacity to heat the objects on which they fall. Means when 1/3 of the total sunlight contain the infrared rays which have capacity to heat the objects, 1/3 of the sunlight is a visible light which help us to observe, to see, which creates in us the sensation of sight. एक विजिबल लाइट जो है, दीज आर नॉट द इंफ्रारेड रेज विच कैन क्रिएट्स इन अस द सेंसेशन ऑफ साइट। हम देखने के लिए हम चीज़ को देखते हैं, इट इज़ ए फंक्शन ऑफ विजिबल लाइट जो हमको दिखाती है। एंड देन देयर इज अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस which cannot reach the earth surface because there is a in the upper part of the stratosphere there is a ozone layer which reflect back those ultraviolet radiation. मीन्स यहाँ पे जो है ये स्ट्रेटोस्फीयर हमारा बचाता है, बट नाउ इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द गेप्स आर बीन फॉर्मेड। अंटार्क वहाँ जो नॉर्थ साउथ अंटार्कटिका है वहाँ पे वो जो है होल्स बन रहे हैं, और इट हैपन्स दैट द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रीच द अर्थ सरफेस, ये आने शुरू हो गए हैं। और इसका कारण ये है कि हमारे जो आइस केप्स जो हैं वो पिघल रहे हैं। अगर सपोज इट हैपन्स, ये क्यों होता है? इसके लिए सिर्फ खतरा एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर दोज कंपाउंड्स विच वी कैन मेक द यूज इन फॉर इम्प्रूविंग आवर क्रॉप्स, फॉर किलिंग द पेस्ट एंड इंसेक्ट्स। ऐसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ऐसी पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का जिसका हम छिड़काव करते हैं फॉर आवर सेल्फिशनेस, अपनी फसल को बढ़ाने के लिए, अपने फ्रूट्स को बढ़ाने के लिए, अपनी दीगर चीज़ों को बढ़ाने के लिए जिनका हम यूज़ करते हैं, तो दे आर हार्मफुल फॉर द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस बिकॉज द ओनली थ्रेट ऑन द ओजोन लेयर इज दैट वी मस्ट नॉट मेक यूज ऑफ दिस इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वीडीसाइड्स, because they are made of chlorofluorocarbon, and those are ultimately dangerous for this, and due to use of that the gaps are formed in the ozone layer. तो then comes, फिर उसके बाद मीजोस्फीयर आता है। तो मीजोस्फीयर के बाद जो है हमारा, मीजोस्फीयर के बाद जो होता है हमारा वो आइनोस्फीयर है, फिर एक्सोस्फीयर है। तो ये हमारे स्फीयर्स थे, ये हमारे स्फीयर्स थे जो बनते हैं, और इनका काम क्या होता है कि हमारा आयनोस्फीयर, आयन्स जो है, आयन्स जो है हमारी ट्रांसमिशंस जो है, रेडियो वेव्स बनती हैं, तो ये हमारा आयनोस्फीयर है। तो आयनोस्फीयर जो है वो थर्मोस्फीयर है, फिर थर्मोस्फीयर है, फिर थर्मोस्फीयर के बाद एक्सोस्फीयर है। मीन्स आप अब समझ गए होंगे कि हमारे इसकी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर जो है वो ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, मीजोस्फियर है, थर्मोस्फियर है, एक्सोस्फियर है। इससे हमको हवा वगैरह मिलती है। स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर है जो हमको बचाती है इससे। फिर मीजोस्फियर और थर्मोस्फियर और आयनोस्फियर है जो हमको ये जो पूरी हमें रेडियो सिग्नल्स, हमारी ट्रांसमिशंस होती है, ये सारी अयानिक होती है, अयान्स होती हैं। तो ये सारा इसका काम थी, इसकी लेयर्स थी। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। तो दिस इज़ एनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट वी विल कम विद अनदर चैप्टर दैट इज़ आल्सो ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज। अब जहाँ तक ईयर का मसला था तो ईयर हमारा ख़त्म हो जाता है। मीन्स विद दिस वी हैव एंड द नेचुरल रिसोर्स दैट इज़ ईयर। तो थैंक्स।